Namaskar and a very warm welcome to all of you in this episode. In the last two episodes, we have spoken about the contribution of Indians and India in the field of science, astronomy, mathematics, trade, business, etc. और जब हम वो सब पढ़ रहे थे या उसके बारे में बात कर रहे थे तो रियलाइज़ ये हुआ कि हमारे पास तो उस वक्त में नॉलेज भी अबंडेंस में थी शायद, और उस नॉलेज का जो शेयरिंग प्रोसेस था वो भी बड़ा ही कोई कॉन्क्रीट रहा होगा। तो हालांकि मैंने पहले भी एंसेंट इंडियन एजुकेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर लगा कि नहीं, शायद मैं उतना जानता नहीं हूँ, समझता नहीं हूँ अभी। तो दिमाग में ये बात आई कि लेट अस हैव अनदर वीडियो बेस्ड ऑन आवर एंशिएंट Indian education system, and not only ancient Indian education system, how did we develop from old days, ancient days to the day when we are talking to each other. तो उसमें सबसे बड़ी बात आती है वैदिक पीरियड की, और मैं अर्ली वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, तो हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे शॉर्ट में। हालांकि इतना लंबा पीरियड है और इतना सब कुछ इस दौरान में हुआ है तो सारी चीज़ों को कवर करना तो मुश्किल होगा, लेकिन मैं वेदा पीरियड से शुरू करता हूँ। और उसके पीछे एक कारण कई बार ये भी लगता है कि जब हम नेहरू जी ने किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो उन्होंने एक जगह उसमें कहा है ऋग्वेदा, फर्स्ट ऑफ 4 वेदास, is probably the earliest book humanity possesses. I mean, that is what he felt. When I talk of that period, because the knowledge was available to us in abundance in these 4 Vedas. So what was the objective of the education that time? What was, because every time when I'm talking to you, I've got a reason, I've got an objective. Objective is only to understanding how did our education really develop. It changed over a period of time for about, like, if I start off Vedic period, it was around 1500 BC, and now this is 2024. So you can find out it comes out to be around approximately 4000 years. So it has been a very, very rich happening journey, of course, ups and downs, and once again we are trying to be as good as possible when it comes to education. So the objective in Vedic time of education was to make the learner the highest level of oneself as a human being. So perfect human being was the basic purpose and objective of the education. Now, how to do this? They said that for this, the learner was to be helped reach self-actualization and self-realization. So it was the inner self of someone which was to be brought out to the best possible, that is the optimum value. Now, see, why was it being done? Because at that time, India was the repository of knowledge and profound wisdom in the form of Vedas. So Vedas, as I told in the beginning itself, was the source of entire knowledge which we really followed and taught it to our new generations. Now, the only thing which was to be done that time, that to transmit this knowledge of Vedas to the new generation. So what they thought, what they had in their mind at that time was that learning is not reading, but realization that knowledge is to be in the blood as an organic part of oneself. So that was knowledge was not only to memorize something and then write it in the examination and then forget it. No. Knowledge was something which they felt is to be the part, an integral part, as any organ of your body is. So knowledge has to remain with you always, to making you achieve that self-actualization and self-realization. और फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो फिर आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि हम लोग उपनयन संस्कार नहीं करते थे, उससे पहले विद्या आरंभ. It was a very, very auspicious occasion when the child was handed over to the guru.
इसको एक बहुत बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता था कि बच्चा अपनी नॉलेज गेन करने की जर्नी पे के पाथ पर अपना शुरुआत करता है। जैसे कई बार जाता है, हम बहुत ही शुभ काम करते हैं तो घर में टीका लगाया जाता है, हिंदुस्तान में तो खासकर ये भारत में होता है, और दही खिलाया जाता है। आज भी बच्चे जो एग्जाम देने जाते हैं या पहली बार कोई बच्चा स्कूल जाता है तो हम ये सब करते हैं। ये वैदिक टाइम से हमारे यहाँ चला आ रहा है कि जब भी उसको विद्या आरंभ, मतलब यू आर स्टार्टिंग योर बिगिनिंग ऑन द पाथ ऑफ योर लर्निंग और नॉलेज गेन ही। और उसके बाद में उपनयन जो संस्कार जब हुआ तो अब बच्चा टीचर के साथ रहेगा। जो आज की तारीख में जिनको हम बोर्डिंग स्कूल्स बोलते हैं, बिल्कुल वैसी ही की सिचुएशन हुई कि गुरुकुल होगा, आश्रम होगा, जिसमें बच्चा गुरु के साथ में रहेगा और नॉलेज गेन करेगा। उसमें ऑब्जर्वेशन, आजकल भी हम ये बात करते हैं कि चिल्ड्रन लर्न मोर नॉट बाय वर्ड्स नेसेसरली बट बाय द एक्शंस। और वहां पर चूंकि बच्चा गुरु के साथ रहता था और 24 घंटे साथ रहता, उनके साथ काम करता था, उनको काम करते हुए देखता था, उनके काम भी करता था बच्चा। और तो मतलब पूरी जिंदगी वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज गेन नहीं करता था, वो जिंदगी की नॉलेज गेन करता था। वहाँ पर लाइफ स्किल्स वहाँ पे वो सीखता था अपने गुरु से। और ये गुरु की जिम्मेवारी होती थी कि अपने बच्चे के अंदर से, जो हम बात कर रहे थे कि बेस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग उसके अंदर से लाए। मतलब आप ये लगाइए कि इसका मतलब मैं ये भी निकाल सकता हूँ, जो हम बार बार ये कहते हैं, एवरीबडी इज एन इंडिविजुअल एंड नोबडी शुड बी कंपेयर्ड विद समबडी एल्स। दिस वॉज टोल्ड टू अस दैट टाइम। भाई हमारा जो इंडिविजुअल बच्चा है उसके अंदर बेस्ट ले आए। हमारे कहीं भी उस वक्त के एजुकेशन में आप कहीं पर भी पढ़िए, आपको ये नहीं मिलेगा कि दिस चाइल्ड वॉज टू बी बेटर देन एनी अदर चाइल्ड। वो बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं था, वहां पर मेरे अंदर जो बेस्ट है वो मेरे गुरुजी को और मुझे मिल करके दोनों को अपने लिए बेस्ट लाना था और उस नॉलेज को रियलाइज करना था। ये बात थी। और वहाँ उस वक्त में भी जैसे से स्टेज एजुकेशन आगे बढ़ी तो दो स्टेज बनी, प्राइमरी स्टेज कहने लगे, सेकेंडरी स्टेज कहने लगे, एंड ऑब्जेक्टिव वाज ऑलमोस्ट द सेम। जो प्राइमरी स्टेज होगी, जो 5 साल में विद्या आरंभ से शुरू होती है, तो उसको माना जाएगा कि बच्चे को हम हायर लर्निंग के लिए तैयार कर रहे हैं। बेसिकली उनको ये तैयार करें। आज की तारीख में आप लोग देख रहे हैं कि प्री प्राइमरी स्कूल हो गए, उसको स्कूलिंग के फॉर्मल स्कूलिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी के लिए और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हम लोग बच्चों को तैयार करते हैं। तो जब ये बच्चों को तैयार करते थे, भाई सब्जेक्ट क्या पढ़ाते थे? देखिए उस वक्त में फोनोलॉजी जो आजकल भी हम लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो प्राइमरी क्लासेस में इसके ऊपर बड़ा ध्यान दिया जाता था। प्रोनाउंसिएशन के बारे में बड़ा बात करते थे, अल्फ़ाबेट्स के बारे में बड़ा बात करते थे, उसका फोर्स संस्कृत वर्सेस खूब होते थे तो उनके बारे में बात करते थे हम। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था। और कमाल की बात है कि मैथमेटिक्स में उस वक्त भी टेबल्स पढ़ाए जाते थे। मुझे याद है कि हम लोग ने भी 57 साल पहले पहाड़े पढ़े और उनको हम एक तरह से रटना कहा जाता था, जिस रटने को आजकल बिल्कुल ही नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो जब आप सेकेंडरी में आए या उससे ऊपर गए तो इन सब्जेक्ट्स के साथ में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हुआ, आपका अल्फाबेट्स हुए, लैंग्वेज, दीज वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज आई टोल्ड बिफोर। तो सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए उसके अंदर। भाई आप एस्ट्रोलॉजी आ गया, न्याय शास्त्र आ गया, डिफेंस की बात होती थी, अर्थशास्त्र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता था। और कहा तो ये जाता है कि उन दोनों में करीब करीब 18 से 20 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। 18 से 20 सब्जेक्ट बच्चे पढ़ते थे। और अब ये तो सिलेबस की बात होगी, तो भाई अब वाज देयर सम कंट्रोलिंग बॉडी टू रेगुलेट एजुकेशन? देयर वाज नो कंट्रोलिंग बॉडी। देयर इज नो मेंशन कि भाई कोई स्टेट गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट थी और वो बच्चों की एजुकेशन के लिए कोई इस तरह का। नो, यहाँ पे गुरु होते थे और गुरु ही अब ये आश्रम जब बनते थे तो कई बार तो ये कहा गया है कि जो धनी लोग थे, रिच लोग थे, वो अपनी तरफ से आश्रम बना दिया, गुरुकुल बना दिया और टीचर ने वहां जाकर के पढ़ाया। और कई बार ये भी होता था कि ऐसा नहीं हुआ किसी जगह पर तो गुरु खुद कोई एक आश्रम शुरू करते थे, वहां बच्चों को ला करके पढ़ाना शुरू करते थे और बाद में साल के अंत में या जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तो उस वक्त पेरेंट्स उन गुरु को या गुरुकुल को कुछ दान के रूप में या दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ दे दिया करते थे। कमाल की बात यह है कि गुरु खुद ही
मतलब अपने आप में सोल अथॉरिटीज थे. ही वाज द टीचर, ही वाज द रेगुलेटर, ही वाज द पेरेंट, गार्डियन ऑफ द चाइल्ड, ही वाज द वन हु वुड रियली प्रमोट और नॉट प्रमोट द चाइल्ड. सो ये लगातार एक गुरु के हाथ में था, करिकुलम गुरु के हाथ में था, पढ़ाने का तरीका गुरु के हाथ में था, बच्चे को ये सर्टिफिकेट देना कि बच्चे की एजुकेशन पूरी हो गई है, वो भी गुरु जी के हाथ में था. अब ये बात आई सामने के सब ये तो कुछ गुरुकुल्स रहे होंगे, कुछ आश्रम्स रहे होंगे, लेकिन अब मासिस तक ये एजुकेशन कैसे पहुंची? तो यहाँ पर बात आई कि कुछ घुमंतू लोग तैयार किए गए और उनको कहा गया कि आप जाइए गांव से गांव और जो भी छोटी छोटी जगह वहां जाकर के बच्चों को ये शिक्षा दीजिए. और वो जाते थे. श्री शंकराचार्य जी ने भी जो वहां पे मठ के अंदर सन्यासिन्स होती थी उनको ये टास्क दिया कि आप जाइए और बच्चों को पढ़ाइए. तो इस तरह से ये मासिस में भी एजुकेशन पहुंची और ऑफ कोर्स गुरुकुल्स में तो एजुकेशन दी ही जा रही थी. और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि Brahmins were considered to be the ones who would be giving the knowledge to the people or who would be educating. अब यहाँ पे थोड़ा सा एक डिबेट जरूर रहती है कि वो ब्राह्मण क्या बाई कास्ट थे. देखिए उस वक्त तो कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ था नहीं, कास्ट सिस्टम तो बाद में ब्रिटिशर्स लेके आए. तो उस वक्त इतनी बात मैं तो ये मानता हूँ शायद ये था कि जो जिसके अंदर नॉलेज ज़्यादा, जो वेदों की जिसके अंदर नॉलेज खूब थी, उसको उन्होंने टीचर बना दिया और उसको ब्राह्मण कह दिया. सो दिस वुड हैव बीन वन वे. द वन हु वाज एबल टू फाइट वेल उसको क्षत्रिय बना दिया और द वन हु वाज एबल टू टेक केयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड उनको वैश्य बना दिया. और बाकी जो है जो नहीं ये तीन काम कर पाते थे उनको दूसरे काम में हेल्प के रूप में उनको भी रख लिया. इंपॉर्टेंस सबकी थी, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंस नहीं थी. अब उसके बाद में सवाल ये भी आता है कि सब देखिए ऐसे भी तो बच्चे रहे होंगे जिनके आज की तारीख में भी जैसे RTE हिंदुस्तान के अंदर लागू है कि जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे एजुकेशन, तो क्या उनके लिए बिल्कुल फ्री एजुकेशन होती थी? तो कहा ही जाता था कि जो बच्चे या जिनके पेरेंट्स फीस नहीं अफोर्ड कर पाते थे या दक्षिणा या दान अफोर्ड नहीं कर पाते थे गुरुकुल के लिए, तो उनको काम करना पड़ता था. मतलब दे वर टू हेल्प, एवरीबडी हैड टू हेल्प गुरुजी इन द आश्रम, बट दी चिल्ड्रन वर टू हेल्प अ लिटिल मोर. उनको थोड़ा सा काम ज्यादा मिलता था. मतलब आई थिंक जो मेरा अंदाजा है, आइडिया ये नहीं था कि उनसे ज्यादा काम करा करके, नहीं, उनको ये महसूस कराना था कि कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिल रही है, फ्री में नहीं मिल रही है. टू गेनिंग नॉलेज वी आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड. उसके लिए या तो पैसा दिया है पेरेंट्स ने या फिर मैं मेहनत करके जो जिस काम के लिए हमें किसी को पैसा देना पड़ता वो काम मैंने किया और वो पैसा बचाया, तो समझ लो कि एक तरह से मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया गुरुकुल को. तो इस तरह की चीज वहां पर रही. सो ये वैदिक एजुकेशन में ये चलता रहा. और उसके बाद में जैसे जैसे चीज़ें आई और हम थोड़ा और आगे बढ़े तो बुद्धिज्म हमारे देश में आया और दुनिया में भी फैला. फिर उसके बाद जैनिज्म आया, तो वहाँ पर भी कुछ थोड़े से चेंजेस हुए. और बुद्धिज्म में तो आप देखें कि बेसिकली तो वही चीज़ रखी, बिकॉज मोनेस्ट्री होती थी जहाँ बच्चे पढ़ते थे जाकर के. और रिलीजन की एजुकेशन जो है वैदिक पीरियड में भी दी जाती थी, बुद्धिज्म में दी जाती है, जैनिज्म में भी दी जाती है और इस्लाम में भी दी जाती है. तो ये चलता रहा. और जब बुद्धिज्म का फैला और मोनेस्ट्रीज आई जिनको विहाराज कहते थे, उनके अंदर मोंक्स पढ़ाते थे और लर्नर्स वहां पर पढ़ते थे. लेकिन इसमें फर्क वैदिक में और यहाँ पे एक फर्क ये था कि यहाँ पर एक इन्होंने सेंट्रलाइज्ड बॉडी बनाई थी और उसको संघा बोलते थे. और संघा वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द एजुकेशन और उसको फॉलो करते थे monks वगैरह. Whereas in Vedic education the teacher was the whole soul one taking care of everything about the child. और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं एजुकेशन है ऑलमोस्ट सेम रही, कोई ज़्यादा अंतर आया नहीं, सेम प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज रहा. और उसके बाद में जब इन मुगलों ने और दूसरे लोगों ने यहाँ पर, या उससे पहले गजनी या गोरी ने हमारे यहाँ थोड़ा आक्रमण किया और कुछ मंदिरों को थोड़ा मस्जिदें बनी, तो वहाँ पर उन्होंने स्कूल्स खोले पर्टिकुलरली अपने बच्चों के लिए जो इस्लाम जिनमें पढ़ाया जाए धर्म के रूप में. और वहाँ पर जो दो स्टेज हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, उसमें उन्होंने एक थे शायद मकतब्स बोलते हैं जो प्राइमरी स्टेज है, और फिर मदरसाज को सेकेंडरी स्टेज में ले गए. तो जो प्राइमरी स्टेज थी मकतब्स में तो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ आयतें ऑफ कुरान पढ़ाई जाती थी. और जब आप मदरसे में गए तो मेजर फोकस कुरान पे होता था, बट बाकी सब्जेक्ट्स को भी वहाँ ऐड कर लिया जाता था. तो ये चलता रहा और स्कूल्स भी बढ़ते रहे, स्कूलों के
बच्चों के पास और पेरेंट्स के पास में अपॉर्चुनिटी ऑफ गेनिंग नॉलेज थोड़ा सा बढ़ी। अब इस बीच में आप करीब 1600 की बिगनिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई हिंदुस्तान में। मेरे ख्याल से वो 1599 में उसका शायद वो बनी थी इंग्लैंड में, और फिर यहीं पे स्पाइसेस वगैरह का उनको बिजनेस करना था, तो वो हिंदुस्तान में आ गए शायद 1609 के आसपास या 1610 के आसपास, और यहाँ आकर के उन्होंने अपना काम शुरू किया। तो जब वो यहाँ आए तो अंग्रेजी सरकार को लगा कि भाई यहाँ पे तो वेद, बुद्धिज्म, जैनिज्म, अप टू सम एक्सटेंट इस्लाम, इतना बड़ा इनका रोल था, और संस्कृत में चीज़ें पढ़ाई जाती थी, या प्राकृत या पाली भाषा उसमें पढ़ाई जाती थी, या फिर उसके बाद पर्शियन लैंग्वेज यहाँ पर, चूँकि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी पर्शियन बन गई थी, उसमें पढ़ाई जाती थी। तो उनको तकलीफ हो रही थी कि भाई हाउ डू वी मेक एन इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन पीपल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई इस हिंदुस्तान में, उससे पहले भी हमारे पास स्कूल्स काफ़ी होते थे, चाहे आप अक्रॉस इंडिया चले जाएं। अब उसमें वो अलग बात है कि कुछ वैदिक सिस्टम फॉलो कर रहे थे, हिंदू रिलीजन के बेस्ड थे, कुछ जिसमें संस्कृत वर्नाकुलर लैंग्वेजेस बड़ी ज़्यादा थी, बुद्धिज्म में थोड़ा सा डिफरेंट था, जैनिज्म में थोड़ा और अलग हुआ, और जो इस्लामिक जो मदरसाज और मकतब आए वो उनमें थोड़ा डिफरेंट था। बट नंबर ऑफ स्कूल्स हमारे पास थे, बच्चे पढ़ भी रहे थे, और पेरेंट्स वर इंटरेस्टेड इन मेकिंग देयर चिल्ड्रन लर्न, ये सब चल रहा था। तो जब ये कंपनी आई यहाँ पे, इनका तो काम तो आप सब जानते हैं बिजनेस करने का था, लेकिन बिजनेस तो खाली बिजनेस करना तो नहीं, उनको तो फिर अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, अपना सब कुछ यहाँ करना है। तो ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि भाई आप यहाँ पे इंग्लिश स्कूल्स खोलिए, अंग्रेजी हमें लोगों को पढ़ानी है। तो इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी ने थोड़ा सा उसको मेरे ख्याल से अपोज किया, क्योंकि इसमें खर्चा होता था, अपने प्रॉफिट में से यहाँ लगाना नहीं चाहते थे, और वो सरकार सीधा यहाँ पे लगा नहीं सकती थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके यहाँ खुद, मतलब इंग्लैंड में खुद कोई सरकार की तरफ से स्कूल एस्टेब्लिश नहीं होते थे या चलाए जाते थे। वहाँ पर भी उन दिनों सिर्फ और सिर्फ या तो चर्च के द्वारा स्कूल चलते थे, या फिर जो इंडिविजुअल लोगों ने, जो हमारे यहाँ भी खोलते, रिच पीपल खोलते थे, उनके द्वारा स्कूल चलते थे। तो लेकिन अंडर द प्रेशर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्कूल्स खोलने शुरू किए, कुछ कुछ आगे बढ़े, वहाँ से जो लोग उनके आते थे या कुछ ऑफिसर्स आते थे, उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ाया। और 1848 के आसपास जब डलहौजी यहाँ आए, तो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने करीब करीब 2 साल में 1850 और 1852 के बीच में स्कूल्स की संख्या करीब दुगनी करी, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू स्कूल्स वर आल्सो डबल्ड। तो मतलब ये 2 साल के अंदर उन्होंने काम किया। और फिर 1871 और 1881 के बीच का मैं डेटा कहीं पे देख रहा था, तो उसमें जो एलिमेंट्री स्कूल्स उसमें होते थे, प्राइमरी स्कूल्स जो होते थे, उसमें भी उन्होंने ये करीब करीब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एलिमेंट्री स्कूल्स वर मोर देन 3 times, and the number of schools were raised to almost 8 times. I mean, this was what was the emphasis on education that time. And when I say education, that does not mean necessarily the education of Vedic period or Buddhism or Jainism. Their only and only soul, their soul was not to making the perfect human being out of that child. No, their motive was to change us, to convert Indians into the mindset of the Britishers and be their servants. I mean, that was what मैकाले, तो आप सबने पढ़ा हुआ है, उसके बारे में मैं बात क्यों करूं। उन्होंने इतना ज़्यादा एजुकेशन को, मतलब खूब एजुकेशन आई, कॉलेजेस खूब आए, जिनका जिक्र मैं अगले एपिसोड में करूंगा, और स्कूल्स खूब बने। आप देखिए कि अगर उस वक्त देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लेटर ऑन ब्रिटिशर्स, उनका ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन था वो था 3 प्रेसिडेंसीज होती थी हमारी, मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ। और जब कभी हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यहीं हुआ, ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, आप देखिए कि कहाँ तक स्कूल्स खोले, शिमला, देहरादून, मसूरी, दार्जिलिंग, चले जाओ कहीं भी, ट्रिची, उधर आप चले जाओ जहाँ पे, तो इन्होंने स्कूल खोले। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, या तो अपने फ़ायदे के लिए खोले। अपना फ़ायदा क्या था कि इंडियंस को का माइंडसेट चेंज कर देना, हमारे जो ज्ञान था, जो हमारा सेल्फ को बेटर करने का जो तरीका था, इन्होंने वो सिर्फ और सिर्फ किस पे आ गए, ये नॉलेज गेन कर लो, अंग्रेजी सीख लो, मैथमेटिक्स थोड़ा इस तरह से सीख लो, सो दैट आप हमारे लिए
काम कर पाओ, क्योंकि आप वही एजुकेशन लेते रहे जो आप वैदिक टाइम से बुद्धिज्म में ले रहे थे, तो आप तो बहुत बड़े ज्ञानवान रहेंगे। आप फिर हम आपके ऊपर आपके ऊपर रूल कैसे कर पाएंगे। तो ये शायद इनका आइडिया बहुत पहले से था कि ये स्कूल इन्होंने चारों तरफ खोले एक्रोस इंडिया। और मुझे जो पढ़ने में आया, 1715 में इन्होंने चेन्नई में एक स्कूल खोला था, सेंट जॉर्ज एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल। और उसके बाद में बीच में और कई जगह और भी स्कूल खुले हैं, बट जो मुझे याद आता है, सेंट थॉमस स्कूल कोलकाता 1789, क्राइस्ट चर्च स्कूल मुंबई 1815, सेंट पॉल्स दार्जिलिंग 1864, उसके बाद में लॉरेंस स्कूल सनावर बड़ा आपने नाम सुना होगा 1847, मेयो कॉलेज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान 1875, RIMC जो आज की तारीख में बड़ा पॉपुलर है और उसमें डिफेंस पर्सनल के लिए खोला था 1922। और जब हम आज़ाद हुए 1947 में, एजुकेशन के ऊपर हमारी सरकार ने ध्यान दिया। ऐसी बात नहीं है बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बावजूद इसके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। 1963 में केवीज की स्टार्टिंग शुरू हुई। IITs और ये तो हायर एजुकेशन में आते हैं, तो बाद में आप इसके बारे में सुनेंगे, लेकिन केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत हुई। उसके बाद में और जो हमारे सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल चलते थे, वो चलते ही थे, और सरकार ने अपने ऊपर लिया, हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको राइट बताया गया। एक तरह सरकार की जिम्मेवारी बताई गई कि हर नागरिक को एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेवारी है। और देखिए फिर बाद में 2009 के आसपास आकर के तो राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आया, और उसके अंदर तो इसका दिस हैज बिकम द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड इज एजुकेटेड। और 1986 के आते आते राजीव गांधी जी के वक्त में जवाहर नवोदय विद्यालय की शुरुआत हुई, जो गांव के बच्चों को, खासकर रूरल एरिया और इस जगह से आते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा हुआ। और ये केंद्रीय विद्यालय हों या जवाहर नवोदय विद्यालय हों, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन दीज स्कूल इज़ वेरी गुड। इसके साथ साथ में आप देखिए कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें भी इन लोगों ने, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, मतलब ये DPS सोसाइटी ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने आर्मी पब्लिक स्कूल्स शुरू किए, और बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आई जिन्होंने क्वालिटी एजुकेशन में बड़ा कंट्रीब्यूट किया। लेकिन चूंकि हमारी बहुत सारी जनसंख्या, हम पॉपुलेशन इज वेरी हाई, एंड of course we need to really provide lot many other things along with education, but the fact is that we must realize that education is the key for everything else. Education doesn't come from anything else, but everything else comes from the education. और एजुकेशन देता कौन है? आपने देखा वैदिक टाइम में गुरुजी was so much respected and so much trusted that whatever Guruji did, whether he admitted a child or did not admit a child, and nobody questioned, क्योंकि उनको पता था कि गुरुजी की विजडम पे हम लोग सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको आप अपना बच्चा सौंप रहे हैं, अगर आप उसकी विजडम पे आपको भरोसा नहीं है या आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप बहुत गड़बड़ कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। तो जो उस वक्त में चूंकि विश्वास बहुत करते थे, और गुरुजी भी फिर अपना 100% अपने बच्चों से ज़्यादा उन बच्चों को जिनको उनको एजुकेट देते थे, तो वो स्थिति अब थोड़ी सी, मतलब इस वक्त में हम, ठीक है, बहुत मेहनत हो रही है, हमारे नंबर ऑफ स्कूल्स मासेस के लिए बहुत बढ़ गए हैं, एवरीबडी इज टू बी एजुकेटेड, बट इन दैट प्रोसेस we must not miss on the quality of knowledge and quality of education which we had to have. क्योंकि जब तक वो नहीं होगा, आप एजुकेशन तो शायद दुनिया को कर दें, बट जब तक लर्निंग नहीं होगी, जब तक वो नॉलेज आपके ब्लड में नहीं घूम रही होगी एज एन इंटीग्रल पार्ट, एज एनी अदर ऑर्गन ऑफ योर बॉडी इज, तब तक उस एजुकेशन का कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट निकलता नहीं है। और हमें पूरा ध्यान है, हमारी सरकार, हमारे सब लोग मिलकर के इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने भारत को एजुकेशन में भी उतना ही ऊपर लेके जाएं जितना कभी उस वक्त में था जब वैदिक पीरियड था या फर्स्ट मिलेनियम ऑफ दिस एरा वाज। तो ये हम कर सकते हैं। हम सब लोग, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे बच्चे हों, हमारा यूथ हो, हमारे सीनियर सिटीजन्स हो, ये सब में काबिलियत है और सब में ये जज्बा है भी कि हमें अपने देश को और आगे ले जाना है। तो हम एजुकेशन पे और जोर लगाएं, हमारे टीचर्स उन गुरुओं को फॉलो करें, हमारे बच्चे उन शिष्यों को फॉलो करें जो सब कुछ अपना गुरु को सौंप देते थे और वहाँ से बेस्ट लेकर के जाते थे और पेरेंट्स
कैमरामैन्स के सामने पहुंचते थे कि एक हट्टा कट्टा नॉलेजेबल पर्सन वापस आया है 12 साल की एजुकेशन के बाद। हम वही कोशिश करें, हम सब लोग कर सकते हैं। मैं अगले एपिसोड में आपसे बात करूंगा कुछ हायर एजुकेशन के बारे में, उनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, और एक का अभी वापस हमारे प्रधानमंत्री जी ने जून महीने में इसी साल 2024 में उसको वापस रेनोवेट करने के लिए, रिवाइव करने के लिए उसका उद्घाटन किया था। हम बात करेंगे इसके बारे में अगले एपिसोड में। नमस्कार, गॉड ब्लेस अस ऑल।